everyone. My name is Akanksha Srivastav. I am an assistant professor of Balaji Law College, Pune. The topic for today, which I have chosen, is A Journey of Independent India. This is one of my most favorite subjects as it talks about the story of victory over defeat. India was considered the wealthiest nation in the world before the British invaded us. Our country was called the Golden Bird, Sone ki Chidiya, which was rich in heritage without any population explosion. We had enough food for everyone. The agriculture and trade with foreign land was flourishing. We were abundant with raw materials and precious stones. We were not only growing in knowledge, but we were known for our art and architecture, politics and administration, booming economy, etc. People used to say, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा. But unfortunately, this glory could not last for long and was brutally ruined by Britishers who came to our India for snatching our wealth and prosperity. Once, Voltaire said, injustice in the end produces independence. India had faced several invasions throughout the human history. Most of the invaders were clear in their intentions right from the very beginning that they wanted to exploit our country to the fullest. However, British succeeded in bringing India under their control through a business venture which started with British East India Company in the early 17th century. Initially, British Company was made a joint stock company, but gradually it went about spreading its wings and ascendancies, transforming itself from a trading company to a ruling power. They started interfering in the internal affairs of India around 1750s. Battle of Plassey, which took place in 1757, marked the victory of East India Company over the Nawabs of Bengal, which led to massive exploitation of local resources and its people. The only concern of British was to enjoy their power and to rule over India for an infinite period. India's first struggle against the British government was Revolt of 1857, 100 years after the Battle of Plassey. Even though it wasn't a struggle of sovereignty, it planted the desire for freedom in indigenous minds and shook up the very foundation of British rule in India. A prominent leader and an Indian independence activist, V.D. Savarkar, termed this revolt as India's first war of independence. Numerous causes, such as political, social, economic, military, religious, etc., could be traced behind this war. However, this revolt started as Sipahi mutiny, which was later accompanied by the other elements of society. Almost 87% of British troops in India were comprised of Indian Sipahi who were ill treated by the British soldiers and were also paid less than European Sipahis of the same rank. Besides, Indian soldiers could not rise to a rank higher than that of the Subedars. The expansion of the British Empire throughout the country had a detrimental impact on the service condition of Indian Sipahis. They were forced to serve in areas which were very far from their homes. In 1856, Lord Canning issued a General Services Enlistment Act which required that the Sipahis must be ready to serve even in British land across the sea, which was not at all acceptable by the Indian soldiers. It was evident from the conduct of the British that they were using factors like religion, caste against the Indian Sipahis, and the soldiers were tackling it fearlessly. Meanwhile, an unfortunate incident shook the nation where a newly introduced inbuilt P-23 rifles was using cartridge made out of fat extracted from beef and pork, and the Sipahis had to bite the cartridge in order to load the rifle, which was against the religious belief of Hindus and Muslim soldiers. This was a massive revolt against the British with an acquisition of converting Indians into Christianity, and to some extent, this
led to the revolt of 1857. Now, I want to take you all towards the world wars, World War One and World War Two. The reason why I wanted to talk about this, that directly or indirectly the world wars had impacted our country and has resulted or led towards our Indian independence. World War One started from 28th July 1914 and it ended till 11th November 1918. In 1914, a war began in Europe, which soon engulfed almost the entire world. The damage caused by this war had no precedent in history. In the earlier wars, the civilian population were not generally involved and the casualties were generally confined to the warring armies. The war, which began in 1914, was a total war in which all the resources of warring states were mobilized. It affected the economy of the entire world. The casualties suffered by the civilian population from bombing of the civilian areas and the famines and epidemics caused by the war far exceeded those suffered by the armies. It, in its impact also, the war had no precedent. It marked a turning point in the world history. The battles of the world were fought in Europe, Asia, Africa, and the Pacific. Because of the unprecedented extent to which it spread and its total nature, it was known as the greatest war. Now I want to tell you some very interesting facts about World War One. Initially, it was never called World War One. It was named as the Greatest War or in War to End All the Wars. What was the reason behind it? That was that people believed that this is the biggest war or the greatest war, and in future ऐसा कोई भी war नहीं होने वाला. But when World War II happened, it broke the myth, and then again after World War II, it was named as World War One. Now, if you look up on the screen, I have mentioned two groups. One is Allied powers, and the other one is Central powers. Allied powers comprised of Russia, France, Britain, Japan, and USA. Central powers were comprised of Germany, Austria-Hungary, Ottoman Empire. So, what this war was against both these groups. In 1882, there was some kind of secret alliances which were made between both the groups. Like for example, in Allied powers, they have signed one agreement in which it was said that if any outer country is going to attack any of the countries among these allied powers, then the rest of the countries are going to defend them. For example, if Germany attacks France, then it is according to that agreement, USA, Japan, Britain, and Russia, they are going to defend France and they are going to attack the Germany. Similarly, the Central Powers had also entered into an agreement in 1882, जहाँ पे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ओटोमन एम्पायर ने भी आपस में एक अग्रीमेंट कर लिया था कि अगर बाहर की कोई भी कंट्री आकर के हमारे ऊपर अटैक करती है तो जो दूसरी जो कंट्रीज है वो उस कंट्री को डिफेंड करेगी और वो दूसरी कंट्री के खिलाफ लड़ेगी. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर रशिया ने आकर के ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर अटैक किया तो दिस वॉज दी अकॉर्डिंग टू दैट अग्रीमेंट, इट वॉज द duty of the Germany and Ottoman Empire to defend Austria in that war. So now I would like to tell you all about the causes of World War One. The causes of World War One, the first was the alliances, जिसके बारे में मैंने अभी just आपको बताया कि ये जितनी भी agreements थे between allied powers and the central provinces, central powers, these were the secret powers. Like for example, अगर रशिया, फ्रांस, यूएसए ने आपस में कोई agreement किया था तो this was not known to the other countries. Similarly, अगर जर्मनी, ओटोमन एम्पायर एंड ऑस्ट्रिया हंगरी ने कोई अग्रीमेंट किया था तो ये दूसरी कंट्रीज को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था. सो दिस वाज वन ऑफ द रीजन. देन द अदर वाज एक्सपेंशन ऑफ मिलिट्री. एवरी कंट्री वॉन्टेड टू बिकम दी सुपर पावर, और ये जो लड़ाई थी वही सुपर पावर की ही लड़ाई थी. दैट टाइम ब्रिटेन वॉज एक्सपैंडिंग इट्स मिलिट्री, और कहीं ना कहीं जो ब्रिटेन है वो सुपर पावर की तरह होकर के सबके सामने में आ रहा था. सो दिस वॉज नॉट बींग एक्सेप्टेबल बाई वेरियस यूरोपियन कंट्रीज एंड अदर कंट्रीज बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्टेड टू बिकम दी सुपर पावर. सो दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेज बिहाइंड वर्ल्ड वॉर वन. Then the imperialism. Imperialism talks about the expansion of manpower.
power. That was the time during 1914 when the Britain had almost conquered 25% of the world. और जब यूरोप ने ये चीज़ देखी थी तो यूरोप को ऐसा लगा कि उनको क्यों पीछे रहना चाहिए. They also wanted to expand their empire. They also wanted to expand their military. They also wanted to expand their manpower. So this was again the third cause for World War One, and the fourth and the most important reason which resulted into the World War One was death of Archduke Franz Ferdinand on 28 June 1914. Now, I'm going to tell you something about who was this person. Archduke Franz was the only prince ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी, जो कि कुछ टाइम के बाद से वहाँ के किंग होने वाले थे. वंस व्हाट हैपेंड दैट आर्चड्यूक फ्रांस ऑन 28 जून he went on a visit to Bosnia. Bosnia में there was a place. You all can see, I just want to locate you all through this map. Here is Germany, then Austria-Hungary. Austria-Hungary के just नीचे में there is one place called Serbia. तो जो प्रिंस थे वो 28 जून 1914 को सर्बिया में विजिट करने के लिए गए थे. ही जस्ट वेंट टू मीट इट्स पीपल बिकॉज ही वॉज इन फ्यू डेज ही वॉज गोइंग टू बिकम द किंग ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी. सर्बिया में देयर वॉज वन ऑर्गेनाइजेशन जिनका नाम था ब्लैक हैंड. they never wanted him to become the king. So on 28 जून जब जो प्रिंस थे जब वो सर्बिया घूमने के लिए गए थे तो ये ब्लैक हैंड का जो ऑर्गेनाइजेशन था इन्होंने इस प्रिंस के ऊपर अटैक किया था एंड दिस प्रिंस वाज assassinated. When all this incident took place on 18 June 1914, then the people of Austria-Hungary, those who were the supporters of this prince, they got agitated. And when they got to know that it is its own people, Serbia was a part of Austria-Hungary. जब Austria-Hungary के लोगों को ये पता चला कि उनके खुद के देश के लोगों ने ही उनके राजा को मार दिया है, then they became very angry, they become very agitated. और उन्होंने सर्बिया के लोगों को बोला और ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन को बोला कि आप आकर के खुद को सरेंडर कीजिए. बट दिस ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं they were scared और उनको पता था कि it's not going to help. Surrendering is never going to help them. So Serbia और वो जो ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन है they joined hand with Russia. Russia was a part of allied group. So here you can see Russia, France, United Kingdom, all in blue shades. They are from allied powers, and these brown shades, Germany, Austria, Hungary, Italy, they all are from this central provinces. So what happened कि यहाँ पे जब when Austria-Hungary got to know that Serbia has joined hand with Russia, so and Russia wanted to attack upon Austria-Hungary. So as I told earlier that there were some alliances, इन लोगों ने कुछ agreement पे sign किया था. This agreement पे ये बोला गया था कि अगर बाहर की कोई भी country आकर के आपके ऊपर attack करेगी तो दूसरी countries आपको defend करने वाली थी. When Austria-Hungary got to know that Russia is going to attack upon Austria-Hungary, Austria-Hungary ने जर्मनी के साथ में मदद मांगी. एंड अकॉर्डिंग टू दैट अलायंसेस जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी की मदद करने को वो तैयार हो गए. लेकिन यहाँ पे द सिचुएशन वाज लाइक दैट कि रशिया कभी भी फर्स्ट स्टेप नहीं लेना चाह रहा था, बट कहीं ना कहीं देवर इंस्टिगेटिंग दी ऑस्ट्रिया हंगरी एंड जर्मनी. सो हियर जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हंगरी हैड टू अटैक अपॉन दी अदर कंट्रीज. बट यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो इटली इज ऑल्सो इन ब्राउन शेड. कहीं ना कहीं इटली वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ दैट अग्रीमेंट एंड दे वर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस. बट इटली ने इनका साथ देने को इसलिए मना कर दिया और इटली ने ये बोला कि वो जो अग्रीमेंट था वहाँ पे लिखा था कि हमको सिर्फ डिफेंड करना है, हमें अटैक नहीं करना. एंड इटली नेवर वांटेड टू अटैक अपॉन रशिया एंड यूके एंड फ्रांस बिकॉज दे वर वेरी स्ट्रांग. सो इटली बैक्ड आउट. इटली पीछे हट गया और यहाँ पे लड़ाई में रह गए सिर्फ जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हंगरी. सो नाउ व्हाट हैपेंड कि वॉर तो छिड़ चुका था एंड रशिया ने भी वार्निंग दे दी थी और लड़ाई जोरों शोरों से शुरू हो चुकी थी. जर्मनी थॉट एंड ऑस्ट्रिया हंगरी द सेंट्रल प्रोविंसेस थॉट कि रशिया इज अ बिगर प्लेस, इससे अच्छा है कि हम फ्रांस
फ्रांस पे पहले अटैक करते हैं, फ्रांस को विक्ट्री करते हैं, उसके बाद से फिर हम रशिया की तरफ मुड़ेंगे। बट जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हंगरी को उनके अलायंसेस के बारे में नहीं पता था। दे वर अनअवेयर कि फ्रांस और रशिया ने भी यूनाइटेड किंगडम के साथ में, यूके के साथ में और यूएसए के साथ में इन लोगों का एक अलायंस है। तो व्हेन जर्मनी स्टार्टेड कॉन्करिंग अपॉन फ्रांस, जब जर्मनी ने फ्रांस के अंदर मतलब को फ्रांस में इन्वेट करना शुरू किया, तो तुरंत से यूके ने जर्मनी के ऊपर अटैक किया एंड जर्मनी वॉज ब्रूटली डिफेटेड. So the entire World War One took place for 4 years, and as a result, what happened that Germany and Austria, Hungary बहुत ही बुरी तरीके से हार चुके थे, और इस पूरे वर्ल्ड वॉर वन में जो सुपर पावर होकर के निकला था दैट वाज यूएसए. एंड आई जस्ट वांट यू ऑल टू नो दैट ये जो पूरा वर्ल्ड वॉर वन हुआ था इसका ब्लेम जर्मनी के ऊपर डाला गया था, एंड जर्मनी वॉज रिवाइड विथ हैवी पेनाल्टी. एज अ रिजल्ट जर्मनी बहुत सालों तक, जब जर्मनी इकोनॉमिकली काफ़ी वीक हो चुका था, एंड इन 2010 उन लोगों ने अपनी आखिरी पेनल्टी पूरी करी है. सो यू कैन इमेजिन फ्रॉम 1914 से लेकर के 2010 तक इतने साल लग गए उनको वर्ल्ड वॉर वन की पेनल्टी चुकाने के लिए. नाउ मूविंग अहेड टूवर्ड्स वर्ल्ड वॉर टू. इट्स बीइंग सेड दैट वर्ल्ड वॉर टू का बहुत ही बड़ा रोल है in letting us getting our independence. World War II took place happened from 1st September 1939 and it went till 2nd August 1945. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वर्ल्ड वॉर जो वर्ल्ड वॉर वन था, पहले उसको हम वर्ल्ड वॉर वन नहीं बोलते थे. इट वॉज बीइंग रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट वॉर बिकॉज पीपल यूज टू थिंक कि इसके आगे अब ऐसा कोई वॉर होने ही नहीं वाला. लेकिन जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड होने की वजह से फिर हम लोगों को वर्ल्ड वॉर उस जो ग्रेटेस्ट वॉर था वी रीनेम्ड इट एज वर्ल्ड वॉर सेकेंड. Now, World War II is also called the Second World War, and the Second World War, and it was again equivalent to World War One. It's being said कि World War Two के टाइम पे maximum civilians की death हुई थी, and I just want to tell you this was the year when Britishers were in India, and World War One में भी और World War Two में भी Indians को बहुत ज़्यादा loss झेलना पड़ा था because Britain, we were under Britain. और जब कभी भी Britishers किसी भी war में जाते थे तो वो इंडियन की मिलिट्री और इंडियन की आर्मी को ही लेकर के जाते थे. एंड इट विल बी सैड टू नो दैट वर्ल्ड वॉर वन में अराउंड 50,000 इंडियन आर्मीज वर ब्रूटली killed, and in World War II the numbers were in lakhs. So now I want to take you all towards this map. According to this map, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हुआ क्या था. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वर्ल्ड वॉर वन में जर्मनी बहुत बुरी तरीके से हार चुकी थी और जर्मनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा पेनल्टी लगाई गई थी, एंड यूएसए सुपर पावर की तरह होकर के आया था, और ब्रिटेन ने बहुत सारी कंट्रीज़ को कॉन्कर कर लिया था, जिसमें से इंडिया तो ऑलरेडी बहुत ही टाइम से परेशान था. सो यहाँ पे व्हाट हैड हैपेंड कि जो जापान था, जापान डिड कि जापान ने वो हर जगह जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने अपना एक्सपेंशन किया था, जापान ने हर जगह जाकर के कॉन्कर करना शुरू किया था. तो फिर आप जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं, फिलीपींस, हांगकांग, मलाया, सिंगापुर, पर्ल हार्बर, ये सारी के सारी जो जगह है एक टाइम पे ब्रिटिशर्स की हुआ करती थी, ब्रिटेन की हुआ करती थी. बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने सबसे पहले फिलीपींस को कॉन्कर किया, हांगकांग पे कब्जा किया, मलाया पे कब्जा किया, सिंगापुर पे कब्जा किया. एज यू कैन सी इन दिस मैप, सिंगापुर इज वेरी नियर टू इंडिया. सो जब सिंगापुर को उन्होंने कॉन्कर कर लिया था तो जापान ऑल्सो न्यू दैट इवन इंडियंस आर अंडर ब्रिटिश रूल. सो जापान ने इंडियंस को भी धमकी दी थी और ब्रिटेन को ये बोला था कि नाउ माई नेक्स्ट टारगेट इज गोइंग टू बी इंडिया. और ब्रिटिशर्स, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ब्रिटिशर्स तो वैसे भी इंडिया को सोने की चिड़िया मानते थे, तो वो इंडिया को अपने हाथ से इतनी जल्दी से जाने देना नहीं चाहते थे. नाउ हियर यू कैन सी पर्ल हार्बर. पर्ल हार्बर वॉज वन ऑफ द प्लेस इन यूएसए. सो व्हेन व्हाट हैपेंड कि जब जापान ने हांगकांग, मलाया, फिलीपींस, सिंगापुर इन सबको कब्जा कर लिया था, तो फिर उन्होंने जो नेक्स्ट टारगेट किया था दैट वॉज पर्ल हार्बर. सो व्हेन जापानीज एंटर्ड इनटू यूएसए, तो फिर इन लोगों की हालत हो
गई खराब, और फिर यूएसए ने, चाइना ने, इन सब ने ब्रिटेन को जाकर के बोला कि वाई डोंट यू जस्ट गो टू इंडिया एंड सीक हेल्प फ्रॉम देम, बिकॉज इंडिया के पास में आर्मी भी बहुत ज़्यादा है, इंडिया में पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, और अब इस सिचुएशन में हमें इंडियंस की सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जापान ने वैसे भी बोल दिया था कि वो इंडिया को कब्जा करने वाले थे और उनका जो नेक्स्ट टारगेट था वो इंडिया ही था। तो यहाँ पे जितने भी दूसरी कंट्रीज थी, यूएसए, यूके, यूएसए, चाइना, जितने भी ब्रिटिशर्स के सपोर्टर्स थे, उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, क्लीमेंट एटली जो कि ब्रिटेन पार्लियामेंट में हुआ करते थे, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि वाई डोंट यू जस्ट गो एंड सीक हेल्प फ्रॉम इंडियंस। सो नाउ दिस वॉज दी दिस, और जो हमारी जो इंडिपेंडेंस की कहानी है वो यहीं से शुरू होती है। नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू टेक यू ऑल टू द इंडियन सिनेरियो। अभी तक तो हमने वर्ल्ड डिसाइड कर लिया, देख लिया कि वर्ल्ड में क्या हो रहा था, वर्ल्ड वॉर में क्या, फर्स्ट में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में क्या हुआ। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द इंडियन सिचुएशन। सो इंडिया में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फ्रॉम 1940। 1940 में द पाकिस्तान रेजोल्यूशन टुक प्लेस। Pakistan resolution, as in India, there were two parties, prominent parties. One was Indian National Congress and the other one was Muslim League. Muslim League और Indian National Congress में ज़्यादा बनती नहीं थी, because again यहाँ पे जो लड़ाई थी वो पावर्स की ही लड़ाई थी। अगर हम मुस्लिम लीग की बात करें तो जो उनके प्रोमिनेंट लीडर थे, ही वॉज मोहम्मद अली जीना। एंड अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द प्रोमिनेंट लीडर, एंड again Mahatma Gandhi was also associated to Indian National Congress. So it was being believed that Indian National Congress are the biggest supporters of हिंदुत्व, और वो हिंदुत्व को प्रमोट करते हैं। और हमारी कंट्री में वैसे भी मुस्लिम पॉपुलेशन थोड़ी कम हुआ करती थी, तो जो मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे, दे वर कहीं ना कहीं दे फियर्ड दैट इन नियर फ्यूचर अगर हमको इंडिपेंडेंस मिल भी जाता है, और अगर जो भी हमारे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होते हैं, अगर वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से होंगे, तो देयर माइट बी प्रोबेबिलिटी दैट द मुस्लिम कम्युनिटी विल बी इग्नोर्ड, एंड मुस्लिम्स को उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हिंदूज़ को मिलेंगी। सो मुस्लिम लीग वांटेड अ सेपरेट नेशन। और अगर मैं आपको कुछ बता दूं, तो फिर अगर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो हमारे मोहम्मद अली जीना थे, इनिशियली ही नेवर बिलीव्ड इन टू नेशन थ्योरी। उनको कभी से भी नहीं चाहिए था हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा, बट कुछ ऐसे सिचुएशंस हुए, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना को ऐसा लगने लगा था कि इंडिया में मुस्लिम्स आर नॉट बीइंग प्रोटेक्टेड, देयर राइट्स आर नॉट बीइंग प्रोटेक्टेड, और एंड मुस्लिम्स रियली नीड देयर ओन आइडेंटिफिकेशन, देयर ओन रिप्रेजेंटेशन। और यही वजह थी कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो मुस्लिम लीग के लोग थे, दे वांटेड अ सेपरेट नेशन। बट एक बात मैं और आपके नोटिस में डालना चाहती हूँ कि इनफैक्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी जितने भी कई सारे ऐसे लीडर्स थे जिनमें मैक्सिमम मुस्लिम लीडर्स हुआ करते थे। तो ये जो मुस्लिम लीग के जो कुछ मुसलमान थे वही चाहते थे पाकिस्तान बनाना, नहीं तो हमारे कंट्री में ऐसे कितने सारे मुस्लिम्स थे जो कभी भी टू नेशन थ्योरी पे बिलीव नहीं करते थे, उनको हिंदुस्तान ही पसंद था और उनको हिंदुस्तान में ही रहना था। तो 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन टुक प्लेस वेयर मुस्लिम लीग वांटेड अ सेपरेट नेशन पाकिस्तान, which was not at all accepted by Indian National Congress, and as a result this Pakistan resolution failed in 1940. Now moving ahead, I would like to tell you what happened after that. After that happened Cripps Mission. Cripps Mission plan took place in 1942, and this mission is very famous because of Sir Richard Stanford Cripps. Now what was Cripps Mission? Cripps Mission was sent by the British government of India in March 1942 to obtain Indian cooperation for the British war efforts in the Second World War. It was headed by Sir Richard Stafford Cripps, a Labour minister in Winston Churchill's coalition government in Britain. So, what was the background for this Cripps mission? Japan was advancing outside the eastern borders of India, and the fall of Burma was a jolt to the British in the war. The threat of a Japanese invasion was looming, and India's support was essential for Britain war efforts. When the Second World War broke out in 1939, the Viceroy, Lord Linlithgow, declared India a party to the war as part of British Empire. This was done without consultation with Indians, and this led to massive protest from the Congress Party.
The party leaders who were heading 7 provincial government resigned from their post. The Muslim League celebrated as its Deliverance Day. Britain was facing pressure from the US and the allied leaders over its imperial policies in India and also to secure Indian cooperation for the allied war efforts. This also led the British government to send Cripps to India. Now, members of Cripps mission. The mission was headed by Sir Stafford Cripps. Lord Privy Seal accompanied him. There were other members from the State Council, including leader of House of Commons, etc. Now, what was the purpose for Cripps mission? The Cripps mission had several reasons to come to India. The reasons were given below. Britain suffered many losses in Southeast Asia and Japan's threat to invade India seemed real for them. Hence, Britain wanted India's support. Britain was pressurized by the allies USA, USSR, China to seek India's cooperation. Indian nationalists had agreed to support the allied as they hoped for immediate transfer of substantial power and complete independence after the war. Now moving ahead, what were the proposal of Cripps mission? जैसा कि you all can see on the screen, Cripps mission, there were basically majorly 4 proposals for Cripps mission. पहला चीज़ जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और कहीं ना कहीं ब्रिटेन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि उनको इंडिया से जाकर के मदद मांगनी चाहिए, तो वी इंडियंस वी न्यू दैट दे आर गोइंग टू कम एंड सीक हेल्प फ्रॉम अस. तो इंडियंस ने, महात्मा गांधी ने ब्रिटिशर्स के सामने, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के सामने दो डिमांड्स रखे थे. जो उनका पहला डिमांड था दैट ही वांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, उनको पूर्ण स्वराज चाहिए था. और दूसरा चीज़ ये बोला गया था कि हम आपको वर्ल्ड वॉर सेकेंड में मदद ज़रूर करेंगे, लेकिन जैसे ही ये वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप इमीडिएटली हमें पावर ट्रांसफ़र करके आप इंडिया छोड़ करके चले जाने वाले हो. बट कहीं ना कहीं सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को और क्रिप्स मिशन प्लान को एंड ब्रिटिशर्स को ये डिमांड्स हमारे मंजूर नहीं थे. तो क्रिप्स मिशन ने हमारे सामने 4 प्रपोजल्स रखे थे. उसमें से जो पहला प्रपोजल था इट वाज अबाउट डोमिनियन स्टेटस. स्टैफोर्ड क्रिप्स ने बोला कि ठीक है, हम आपको इंडिपेंडेंस ज़रूर देंगे, हम आपको फ्रीडम ज़रूर देंगे, लेकिन फिर भी आपको जो हेड करेगा वो होगा एक ब्रिटिशर. हम आपको कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं दे सकते, हम आपको इंडिपेंडेंस डोमिनियन स्टेटस में दे सकते हैं. उसके बाद से जो उन्होंने सेकंड प्रपोजल रखा था, ही हैड टॉक्ड अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. उन्होंने बोला था कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन बना के देंगे, हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम करके देंगे, लेकिन जो उनके मेंबर्स होंगे कुछ तो आपके साथ में इलेक्टेड होंगे और कुछ मेंबर्स प्रिंसली स्टेट से आएंगे जो कि प्रिंसेस के द्वारा होंगे. तो अगेन यहाँ पे ये चीज़ें हमारे दोनों ही ग्रुप्स, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज़ को पसंद नहीं आई, क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर एट दैट टाइम जो प्रिंसेस हुआ करते थे दे वर बीइंग रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स. तो अल्टीमेटली वो वही चीज़ होने वाला था जो ब्रिटिशर्स के मन में था. तो यहाँ पे ये जो सेकेंड प्रपोजल था वो सेकंड प्रपोजल भी ना इंडियन नेशनल कांग्रेस को पसंद आया और ना ही मुस्लिम लीग को पसंद आया. देन उन्होंने जो थर्ड बात ये बोली थी कि जब तक ये वर्ल्ड वॉर 2 चलता रहेगा तब तक जो डिफेंस पावर होगा, वो जो डिफेंस होगा वो ब्रिटिशर्स के ही हाथ में होगा. कहीं ना कहीं आई कैन इंटरप्रेट फ्रॉम हियर दैट ब्रिटिशर्स को ट्रस्ट इशू था. उनको ऐसा लगता था कि ऑलरेडी जापान ने उनके साथ, जापान उनको डिफीट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को ऐसा लगा था कि इट माइट बी पॉसिबल कि इंडिया आगे चल के हमारे साथ में चीट कर सकते हैं. और यही वजह थी कि जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलने वाला था उन्होंने ऐसा बोला था कि जो डिफेंस होगा वो ब्रिटिशर्स के हाथ में होगा. और जो सबसे चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने बोली थी दैट वाज राइट टू सिसीड. राइट टू सिसीड में उन्होंने ये बोला था कि अभी इंडिया और पाकिस्तान तो उस वक्त एक ही था, तो उस टाइम जितने भी एग्जिस्टिंग स्टेट्स थे वो जब चाहे इंडिया से अलग होकर के जा सकते हैं. तो लेकिन जब ये प्रपोजल आईएनसी और मुस्लिम लीग के सामने रखा गया था तो इस प्रपोजल को ना आईएनसी ने माना और ना ही मुस्लिम लीग ने माना. बट यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अराइज होता है कि आईएनसी, चलो वी बिलीव दैट आईएनसी नेवर बिलीव्ड इन 2 नेशन थ्योरी, बट वाई नेशनल मुस्लिम लीग डिड नॉट एक्सेप्टेड. मुस्लिम लीग इसलिए इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे क्योंकि इस राइट टू सिसीड में ये बोला गया था कि जितनी एग्जिस्टिंग
एग्जिस्टिंग स्टेट्स है वो जब चाहे इंडिया से अलग हो सकती है। उस वक्त पे पाकिस्तान वॉज नॉट इन एग्जिस्टेंस। तो मोहम्मद अली जिन्ना को ऐसा लगा कि जब पाकिस्तान है ही नहीं तो फिर मैं किसी भी स्टेट को अलग ले जा करके भी क्या कर सकता हूँ। क्योंकि अगर हम पंजाब देख ले, जम्मू कश्मीर देख ले, अगर हम बिहार देख ले, उत्तर प्रदेश देख ले, महाराष्ट्र देख ले, सो द पॉपुलेशन इज मिक्स्ड। और मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि एक ऐसा पाकिस्तान बने जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही रहे। सो यही एक वजह थी कि राइट टू secede was not being accepted by Muslim League, as well as it was not accepted by the Indian National Congress as well. So unfortunately जो Cripps mission plan था, it failed in 1942. Now what after that one more movement took place, that was Quit India movement. Now why Quit India movement took place? Quit India movement 1942 में हुआ था और Quit India movement में ये रियलाइज हो गया था एक्चुअली वी कैन से दैट क्रिप्स मिशन का फेलियर लेड टू क्विट इंडिया मूवमेंट। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे जो दो डिमांड्स रखे गए थे ब्रिटिशर्स के सामने, वो डिमांड्स तो हमारे फुलफिल हुए नहीं। ना ही वी गॉट इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर, ना ही वी गॉट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से हमारी इकोनॉमी बहुत इफेक्ट हो गई थी। द प्राइसेस वर ऑन राइज एंड एट द सेम टाइम महात्मा गांधी एंड द अदर लीडर्स फ्रॉम आवर कंट्री दे रियलाइज दैट इफ जापान कैन डिफीट ब्रिटेन, अगर जापान ब्रिटेन को डिफीट कर सकता है तो अगर हम यूनाइटेड हो जाए तो हम क्यों नहीं हम ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकाल सकते हैं, हम ब्रिटिशर्स को मजबूर क्यों नहीं कर सकते इंडिया छोड़ करके जाने के लिए। सो नाउ आई जस्ट वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज अगस्त क्रांति, as Mumbai Godawala Tank Maidan, also known as August Kranti Maidan, is the place where the Quit India movement was launched by Mahatma Gandhi. He, along with other leaders, gathered here on August 8th and August 9th in 1949. Quit India movement is also known as India August Movement or August Kranti. It was officially launched by Indian National Congress led by Mahatma Gandhi on 9th August 1942. The movement gave the slogan Quit India और भारत छोड़ो. Gandhi gave the slogan to the people, do or die. In line with US in the Congress ideology, it was supposed to be peaceful, non-violent movement aimed at urging the British to grant India independence. The Quit India resolution was passed by Congress Working Committee on 8th August 1942 in Bombay. Gandhi ji was named the movement's leader. The resolution stated the provision of the movement as an immediate end to the British rule over India, declaration of commitment of free India to defend itself against all kinds of imperialism and fascism, formation of a provincial government of India after British withdrawal, sanctioning a civil disobedience movement against the British rule. Then after that, British rule. Gandhiji's instruction to various sections of the public. To government servant, he said, do not resign your job, but proclaim loyalty to Indian National Congress. To soldiers, he said, be with my army, but refrain from firing on compatriots. To peasants, he said, pay the agreed upon rent if the landlords and zamindars are anti-government. If they are pro-government, do not pay the rent. To students, he said, you all can leave studies if you all are confident enough. To princes, support the people and accept the sovereignty of them. People of princely states support the ruler only if anti-government declared themselves as a part of Indian nation. So now here you can see that Quit India movement, गांधी जी ने मुंबई में एक इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक मीटिंग हुई थी जहाँ पे उन्होंने ये डिसाइड किया था कि अब ब्रिटिश ना ही हमें जापान को इंडिया आने देना है और ना ही अब हमें ब्रिटिशर्स को हमारे ऊपर रूल होने देना है। तो उन्होंने गांधी जी ने हर कम्युनिटी के लोगों के पास में जाकर के उन्हें ये बताया था कि आप किस तरीके से ब्रिटिश विड्रॉल कर सकते हैं। सबसे पहले जो इंडियंस ने व्हाट दे हैड डन कि हमारे पास में जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हुआ करती थी वहाँ पे जाकर के उन्होंने ब्रिटिशर्स के झंडे हटाए और वहाँ पे हमारा केसरी झंडा लगाया था। दैट वाज वी डिड नॉट हैव ट्राई कलर फ्लैग। उस टाइम पे हम लोग के पास में केसरी झंडा हुआ करता था। तो हम लोगों ने हर गवर्नमेंट बिल्डिंग से ब्रिटेन के फ्लैग्स को हटा करके हम लोगों ने अपना केसरी
ब्रिटिश झंडा लगाया था. देन द सेकेंड थिंग व्हाट दे डिड, उन लोगों ने जितने भी रेलवे ट्रैक्स थे उन सारे रेलवे ट्रैक्स को ख़त्म कर दिया था, तोड़ दिया था. क्योंकि कहीं ना कहीं रेलवेज जो ब्रिटिशर्स लेकर के आए थे, दे वर एक्सपोर्टिंग द एनिमल्स एंड द बॉन्डेड लेबर्स फ्रॉम आवर कंट्री टू देयर ओन कंट्रीज. तो हमने सारे रेलवे ट्रैक्स तोड़ दिए थे. उसके बाद से फिर जितने भी कम्युनिकेशन की के जो भी वो जितने भी कम्युनिकेशन की ज़रिया था हमने वो सब कुछ कट कर दिया था, ताकि ब्रिटिशर्स बाहर के लोगों से जा कर के मदद ना ले सके. बट एट द सेम टाइम ब्रिटिशर्स भी शांत बैठने नहीं वाले थे. व्हाट दे डिड, उन लोगों ने लाठी चार्जेस करे, उन्होंने हमारे ऊपर टीयर गैसेस लगाए, एंड एज अ रिजल्ट अराउंड 10,000 पीपल डाइड. वेन महात्मा गांधी सॉ दिस, बिकॉज अगेन एज आई सेड बिफोर दैट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था वो कभी भी वायलेंट नहीं होना चाहता था. दे वॉन्टेड टू गो फॉर अ नॉन वायलेंट मूवमेंट, बट एज अ रिजल्ट हमारे 10,000 भारतीय लोगों की डेथ हो चुकी थी. बट हम लोग इस पोजिशन पे आ चुके थे कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे, हम बहुत आगे बढ़ चुके थे. फिर महात्मा गांधी ने सोचा, फिर महात्मा गांधी अनशन पे गए, और काफ़ी बहुत रिवोल्ट करने के बाद से कहीं ना कहीं ऑलरेडी ब्रिटिशर्स जापानीज़ की वजह से हार रहे थे वहाँ पे. तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को रियलाइज़ हो गया दैट अब इंडिया में वो रह नहीं सकते, एंड देन ब्रिटिशर्स डिसाइडेड टू लीव आवर कंट्री. बट द मेजर प्रॉब्लम वाज विद देम कि हमें ट्रांसफ़र ऑफ पावर किसको करना है, बिकॉज यहाँ पे टू पार्टीज़ वर देयर. वन वॉज मुस्लिम लीग एंड द अदर वॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो यहाँ पे और हमारे बीच में कभी बनती नहीं थी. मुस्लिम लीग और आईएनसी में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करती थी. तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट आफ्टर दिस क्विट इंडिया मूवमेंट कैबिनेट मिशन प्लान आया. कैबिनेट मिशन प्लान वॉज हेडेड बाई पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर. इन लोगों ने सर जो क्लीमेंट एटली, कैबिनेट मिशन वॉज अ हाई पावर्ड मिशन सेंट इन February 1946 to India by Attlee government, British Prime Minister. The mission had three British cabinet ministers, Patrick Lawrence, Stafford Cripps, and A.V. Alexander. And they all were the cabinet ministers of British Parliament. So what was the main objective of cabinet mission? To obtain an agreement with the Indian leaders as to framing of Indian constitution, to formulate a constitution making body, to establish an executive council with support of major Indian parties. कहीं ना कहीं जो हमारा संविधान हमें मिला है, द कॉन्स्टिट्यूशन विच वी हैव रिसीव्ड, उसका मैक्सिमम क्रेडिट कैबिनेट मिशन प्लान को जाता है. क्योंकि बहुत टाइम से, बहुत सालों से जो हम लोग हमारे ऊपर जो रूलिंग चल रही थी वो ब्रिटिश लॉज की चल रही थी. अगर हम इंडियन पिनल कोड भी देखें, सो अगेन इट हैज़ बीन ड्राफ्टेड बाई सर मैकॉली, और कहीं ना कहीं वो भी अभी भी वो ब्रिटिश लॉज ही हैं जो हम फॉलो करते आ रहे हैं. तो जब ब्रिटिशर्स हमारे पास में थे तो उस टाइम पे भी हम ब्रिटिश का ही लॉ फॉलो करते थे. तो हम इंडियंस को लगा कि हमारे पास में खुद के अपने कुछ लॉज होने चाहिए, एंड दैट वाज द रीज़न दैट कैबिनेट मिशन प्लान हैड कम टू इंडिया. और उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देने में कैबिनेट मिशन प्लान का बहुत ज़्यादा योगदान है. सो आफ्टर कैबिनेट मिशन प्लान, सर माउंटबेटन हैड कम. माउंटबेटन वॉज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ आवर country. Or why Mountbatten was chosen for our partition, because he was considered as brilliant and somebody who was very noble in his profession. It's being said that Sir Lord Mountbatten was very polite, very grounded, and in fact we Indians, we really loved him a lot. So Lord Mountbatten came to India with an aspiration to the partition of India, and not the speedy transfer of responsibility, initially in the form of dominion status, to the government of the sections of a divided India. On June 3, 1947, Lord Mountbatten put forward his plan, which outlined the steps for the solution of India's political problem. The outlines of the plan are discussed below. India to be divided into India and Pakistan. Bengal and Punjab will be partitioned, and a referendum in northeast frontier provinces and Sylhet district of Assam would be held. There would be a separate constituent assembly for Pakistan to frame its constitution. The princely states would enjoy the liberty to join either India or Pakistan or ever remain independent.
August 15, 1947 was date fixed for handing over power to India and to Pakistan. The British government passed the Indian Independence Act of 1947 in July 1947, which contained the major provisions put forward it. So Lord Mountbatten was has been given lot of credit in India's partition. As we all know that we received a partition on 15th August 1947 and Pakistan got the partition on 14th August 1947. Now, there I would like to tell you all some very interesting facts about our Constituent Assembly. Now, do you all know when our national flag was being adopted? We adopted our national flag on 22nd July 1947. The reason behind this was that on 15th August we had decided that we are going to get independence. तो हमारे पास में अभी तक तो केसरी झंडा था, but जो हमारे leaders थे, we wanted it to be replicated or represented by tricolor, which comprises of saffron, white and green and बीच में अशोका चक्रा. So on 22nd जुलाई हम लोगों ने सबके सामने अपना नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था और उसके बाद से ताकि हम लोगों ने इसलिए अडॉप्ट किया था कि 15 अगस्त 1947 को जब हमें आज़ादी मिले तो पूरी दुनिया के सामने हम अपना नेशनल फ्लैग सबके सामने प्रेजेंट कर सके. नाउ द अदर क्वेश्चन इज व्हेन डिड वी अडॉप्ट आवर नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम. These are the questions for competitive exams. तो हमने अपना नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया था. इसके पीछे की वजह क्या थी? इसके पीछे की वजह ये थी कि 26 जनवरी 1950 को हमें रिपब्लिक मिलने वाला था. दैट वाज द डे जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन सबके सामने प्रेजेंट करने वाले थे. तो जिस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन सबके सामने प्रेजेंट करने वाले थे तो हम लोगों को उसको किसी एंथम के साथ में डिपिक्ट करना था. सो दैट वाज द रीजन कि रिपब्लिक डे के 2 दिन पहले हम लोगों ने अपना नेशनल एंथम एक्सेप्ट किया था, अडॉप्ट किया था और हमने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि 26 जनवरी को जब हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब सबके सामने ओथ लेंगे तो उस दिन हम लोग अपना नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग सबके सामने प्रेजेंट करने वाले थे. एंड दैट वाज द रीजन व्हेनेवर अ क्वेश्चन कम्स दैट वेयर आवर नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम वाज बीइंग अडॉप्टेड, सो इट वाज on 24th January 1950. Now I would like you all to know some interesting facts about Constituent Assembly. The idea for a Constituent Assembly for drafting a constitution for India was first provided by Bal Gangadhar Tilak in 1895. In 1934, by M.N. Rao demanded for a Constituent Assembly was raised for the first time, which became an official demand in 1935. This demand was accepted in August 1940, offered by the British. The Constituent Assembly was formed on recommendation of the Cabinet Mission, which visited India in 1946. The first meeting of Constituent Assembly was held on December 9, 1946 in New Delhi. Its temporary president was Dr. Sachidanand Sinha. Dr. Sachidanand Sinha was the oldest member of Constituent Assembly, and that was the reason कि हम लोगों ने उनको सिर्फ टेम्पररी थोड़े टाइम के लिए ही अपना प्रेसिडेंट और अपना चेयरपर्सन चुना था. देन ऑन अगेन 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई थी. 11 दिसंबर 1946 को हमारी सेकेंड मीटिंग हुई थी जहाँ पे हम लोगों ने राजेंद्र प्रसाद को अपना परमानेंट प्रेसिडेंट चूज़ किया था और हरेंद्र कुमार मुखर्जी को हमने अपना वाइस प्रेसिडेंट चूज़ किया था. Then after that, the objective resolution was passed under the chairmanship of Jawaharlal Nehru on 13th December 1946. और यही objective resolution आज के टाइम पे हमारा preamble है. And always remember कि हमारा जब constitution बन गया था तो सबसे आखिरी में हम लोगों ने अपना preamble add किया था. उसके बाद से the draft of Indian Constitution was presented on October 1947. President of the drafting committee was Bhim Rao Ambedkar. ऐसा बोला जाता है कि जो Constitution का जो स्ट्रक्चर जिन्होंने बनाया है वो है BN राव और उसके ऊपर जिन्होंने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है वो पूरी ड्राफ्टिंग कमेटी के लोगों ने मिलकर के किया है. एंड डॉक्टर भीम राव अंबेडकर was selected as the president of drafting committee because he was excellent in law along with BN Rao and other members of drafting committee. The total time consumed to prepare the draft was 2 years, 11 months and 18 days. The Constituent Assembly was first parliament of independence
independent India. The Indian Constitution was enacted on 26 November 1949 and put into force on 26 January 1950. On that day, the Constituent Assembly ceased to exist, transforming itself into the Provisional Parliament of India until a new parliament was constituted in 1952. Now, I want to tell you all something very interesting. We all know two dates. One is 15th August and the other one is 26th January. 15th August तो हम लोगों ने काफ़ी लेट से डिसाइड किया था कैबिनेट मिशन प्लान में कि 15th August is going to be the independence day for our country. But from so long, 26th January was being celebrated as the Independence Day. हम हर साल 26 जनवरी को ही इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया करते थे, जब हमें पता भी नहीं था कि 15th अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर सकते हैं. तो सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 26 जैन एंड 15th अगस्त? जब हमारा मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत जल्दी थी, ही वांटेड पाकिस्तान, और जब सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपरली तरीके से हो रही थी, माउंट बैटन हमारे पास में थे, हमारे पास में सर रैटक्लिफ थे जिन्होंने बाउंड्रीज बनाई थी, और जब सारी चीज़ें बिल्कुल सही टाइम से चल रही थी तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि 15th अगस्त को हम अपना इंडिपेंडेंस ले लेते हैं ताकि पाकिस्तान भी अलग हो जाए और इंडिया भी अलग हो जाए. बट अगेन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम चल रही थी कि 26 जनवरी को ऑलरेडी हम कितने सालों से अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे. तो फिर उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो 1946 में ही रेडी हो चुका था. तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि 26 जनवरी को हम लोग अपना गणतंत्र दिवस मनाएंगे, क्योंकि हम 26 जनवरी की रेलेवेंसी को प्रिजर्व करके रखना चाहते थे, उसकी इंपॉर्टेंस को प्रिजर्व करके रखना चाहते थे. और यही वजह थी कि 15th अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं, जिस दिन हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन पूरी दुनिया के सामने रखा था. So these were some interesting facts about Constituent Assembly. Now I would like to rest my lecture over here. Thank you so much. And yes, true, I am a very proud Indian. And I think each one of us is a very proud Indian. Thank